Hello everyone, this is Parvi Patel, core team member of Developer Student Club, Silver Oak University. On behalf of the whole community, I would like to welcome you all. Really appreciate you all for putting a lot of effort to learn and advance your career. This is our third Android Study Jam. Very happy to see you all throughout the journey. And if you have missed our first two Android Study Jams, don't worry. The complete video recording and resources of both the study jams are available at our DSC Discord server. The link for our Discord server is in the chat. Before starting, I would like to share the event guidelines with you guys. The entire session would be recorded for official purposes. In case you have any doubt during the session, you can write it in the chat box. And within some duration, the recording for this session will also be shared with you on the Discord server. Without doing further delay, I would like to hand over the session to our Android facilitator, Mr. Rojaswani. Hello everyone. Hope you all are doing well and take care of yourself and your family. Everyone, welcome to this study jam. So, let me introduce myself. I am Ojaswani from third year computer department, and I am the Android study jam facilitator for DXC Silver of University. And I am conducting this whole Android study jam series. So, let's start. So, there are some prerequisites as you all know. And if you want to do hands-on with me, then you also need to Android device and USB cable to connect your Android to computer. Else you can use emulator of Android Studio to emulate the app. So let's start today's session. So today is the session 3 of the new to programming track. Before going further, let's take a look what we learned in the previous sessions. So we learn about some basic concept of programming, function, class, and also we made two new apps. One is this DSC app and one is Dice Roller app. So okay. So today we are starting with unit 2 of the course, and in this unit you will get two badges. So for this whole 3 session series, you are getting 10 badges. So okay. So in this unit, we cover two pathways. In this, we will learn some concept of programming, object-oriented programming, and also make one interesting app from there. So I am showing code in Kotlin Playground, and you can also code with me in that. Link of the Kotlin Playground is in the chat. Uh, okay, so let's start. Okay, so our first topic is class and inheritance. In this topic, we will learn about what is inheritance and more specifically, what is inheritance and how to implement it in the Kotlin with the help of the examples. ओके सो बेसिकली इनहेरिटेंस क्या होता है कि जैसे कि जैसे कि मेरे दादाजी है दादाजी के बाद आते हैं पापा पापा के बाद लाइक उनके सन्स एंड डॉटर्स वैसे तो वो वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस उसको बोल सकते हैं हम so okay so basically inheritance is one of the key feature of object oriented programming and it allows user to create new class or from an existing class so यहाँ पर अगर हम पीपीटी में देखें तो यहाँ पे एक व्हीकल करके बेस क्लास है जो मेन क्लास है फिर उसके सब क्लास हमने बनाए हैं कार प्लेन एंड बोट जो वन टाइप ऑफ व्हीकल व्हीकल ही उसको बोल सकते हैं व्हीकल के कैटेगरीज हो गए अब कार की कैटेगरी हम देखें तो रेस कार है तो रेस कार के लिए कार हो गया बेस क्लास एंड रेस कार हो गया सब क्लास तो जैसे हम अगर हम एक क्लास से दूसरा क्लास डिराइव करें तो उसको हम बोलते हैं इनहेरिट करना ओके सो द डिराइव क्लास का एक फीचर होता है कि वो डिराइव क्लास होता है वो बेस क्लास की सारी क्या बोलते हैं सारे फीचर्स होते हैं वो सेम टू सेम उसके अंदर होते हैं और एडिशनल फीचर होते हैं लाइक व्हीकल है तो व्हीकल में क्या होता है कि 4 व्हील्स होते हैं व्हील्स होते हैं बेसिकली या फिर उसकी कुछ मैकेनिकल होता है उसमें सेम चीज कार में होता है प्लेन में होता है वैसे ओके सो अगर हम देखने जाए एंड्रॉइड की लैंग्वेज में
अगर एंड्रॉइड की लैंग्वेज में अगर हम देखने जाए तो वहाँ पे एक होता है व्यू, उसके अंदर होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ व्यूज, लाइक हमने लास्ट टाइम देखा था कि टेक्स्ट व्यू होता है, फिर इमेज व्यू होता है, वैसे। तो अगर हम टेक्स्ट व्यू ले तो टेक्स्ट व्यू में भी डिफरेंट टाइप ऑफ आते हैं कि एडिट टेक्स्ट हुआ, फिर उसमें बटन आ गया, वैसे। तो टेक्स्ट व्यू के लिए क्या व्यू हुआ, पेरेंट क्लास। सेम इसके लिए एडिट टेक्स्ट या फिर बटन के लिए टेक्स्ट व्यू अपना पेरेंट क्लास हो गया। और पेरेंट क्लास या फिर उसको हम सुपर क्लास भी बोल सकते हैं। ओके। और व्यू के लिए ये चिल्ड्रन हो गए टेक्स्ट व्यू, फिर टेक्स्ट व्यू के लिए एडिट क्लास एंड बटन चिल्ड्रन हो गए। सो वन टाइप ऑफ ये इनहेरिटेंस फॉलो करता है। ओके, सो बेसिकली ये थियोरेटिकल था। अब इसको हम प्रैक्टिकली देखने जाए तो उसका हम प्रैक्टिकली कोड करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो हमें इनहेरिट करने के लिए कोटलिन में दो टाइप से हम इनहेरिट कर सकते हैं, कोटलिन या फिर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, सॉरी लैंग्वेज में कोई भी हम दो टाइप से इनहेरिट कर सकते हैं। वन होता है एक तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना के या फिर उसको ओपन क्लास करके। सो अगर हम वन एग्जांपल लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट का। ओके, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है इनहेरिटेंस में जिसमें मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिया हुआ है। अब आगे जाने से पहले देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता क्या है। तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास वन, जैसे हम कोई भी बिल्डिंग बनाने से पहले उसकी ब्लूप्रिंट बनाते हैं या फिर डिजाइन बनाते हैं कि इस हिसाब से वो हमारी बिल्डिंग डिजाइन होगी। सेम चीज प्रोग्रामिंग में होती है, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बेसिकली उसमें दिया होता है कि उसके सारे क्लास किस हिसाब से हम डिजाइन करेंगे या फिर इनिशियलाइज करेंगे सारे क्लास। तो मैंने यहाँ पे एक क्लास लिया एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब मुझे कोई क्लास का एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए उसके आगे सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखना है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर उसकी प्रॉपर्टी सब में जो अगर वैसा हो कि मुझे वो प्रॉपर्टी दूसरे इसमें यूज करनी है, तो उसके आगे हम एब्स्ट्रैक्ट लगा देंगे, सिंपल। तो सो यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लिया हुआ है, एक क्लास लिया हुआ है चेस। सो चेस क्लास में मैंने क्या लिया, नेम, नेम वेरिएबल कौन सा है, स्ट्रिंग का। सेम उसमें मैंने एक और वेरिएबल डिराइव की जो मुझे दूसरे इसमें यूज करना है। तो मैंने उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट एक वेरिएबल ले लिया, उसमें मैंने लिया है रेट, जो आईएनटी टाइप का है। सेम वैल्यू, नेम। और ये जो नेम कहाँ से लेगा, यहाँ जो हमने पहले क्लास में डिफाइन किया था वहां से। और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिया हुआ है इंट्रो, दैट माय नेम इज दिस एंड माय रेटिंग इज दिस। ओके, एंड यहाँ पे एक और फंक्शन मैंने लिया हुआ है एब्स्ट्रैक्ट ऑक्यूपेशन का। ओके, सो आगे देखते हैं हम क्लास। सो क्लास में मैंने क्या लिया है, वाई टी। उसके अंदर फिर मैंने दो वेरिएबल लिए, जैसे हम नॉर्मल क्लास बनाते हैं वैसे सेम नॉर्मल क्लास मैंने इनिशियलाइज किया हुआ है। और उसको अगर हमें इनहेरिटेंस यूज करना है तो क्या करना पड़ता है, हमें जो भी है उसको एक्सटेंड करना पड़ता है क्लास को। तो एक्सटेंड करने के लिए हम करते हैं डबल कॉलन यूज। ओके, हमने जैसे कि मुझे ये यहाँ पे यूज करना है तो मैंने ये चेस क्लास यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया इसको। अगर हम ऐसे कॉलन करके लिखे तो उसको एक्सटेंड करना बोलते हैं हम। ओके, अब क्या कि हमें रेट वेरिएबल यूज करना है। तो रेट क्या, हमने यहाँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास में लिया कि ब्लूप्रिंट में मैंने लिया हुआ है कि मुझे रेट डिफाइन करना है, तो मैंने सेम चीज वहां पे यूज की, रेट। और रेट के लिए मैंने यहाँ से हम जो भी वैल्यू लेंगे क्लास में आएगी वो वैल्यू हम रेट वेरिएबल में डालेंगे। ओके, देन हमने ये ऑक्यूपेशन लिया हुआ है तो वो हमने लिया यहाँ पे। अब हम जो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में लिखा हो सेम अगर हमें यूज करनी हो तो उसके लिए हमें लिखना पड़ता है ओवरराइड कीवर्ड यूज करते हैं हम यहाँ पे। ओवरराइड कीवर्ड क्या करता है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू हो उसको वो ओवरराइड कर देता है, मतलब ओवरराइड कर देता है वो वैल्यू, कि उसको नई वैल्यू उसको हम असाइन कर सकते हैं, वैसा। फिर ये हमारा मेन फंक्शन। अब हम जैसे हमने देखा था लास्ट टाइम कि हम क्लास को कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, सेम चीज यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैंने एक लिया हुआ है समय नाम का मैंने वेरिएबल लिया है। उसके अंदर मैंने ये वाई टी क्लास लिया। उसके अंदर मैंने लिया कि नेम डालना था, हमें नेम में मैंने लिया समय, और आरटी में मैंने डाला 1450। और फिर मैंने इंट्रो नाम की मेथड मैंने कॉल कराई। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई इंट्रो नाम की मेथड है ही नहीं, तो वो लेगा कहाँ से।
तो मैंने यहाँ पे एक चीज समझाई कि क्लास को हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड किया था नीचे। ओके। तो अगर हम चेस में देखते हैं, चेस में ये मेथड अवेलेबल है इंट्रो करके। तो ये मेथड वो चेस से लेके ये मेथड वो चेस क्लास में से डिफाइन करेगा यहाँ पे। ओके। फिर मैंने लिया समय डॉट ऑक्यूपेशन, और ऑक्यूपेशन मैंने कॉमेडियन लिख दिया। ओके। एंड देन प्रिंट एलन, सेम चीज मैंने विदित नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर मैंने सेम क्लास इनिशियलाइज किया, फिर मेथड कॉल कराई। ओके। अब इसको रन करते हैं हम, तो क्या आउटपुट आता है देखते हैं। लाइक ये माय नेम इज समय, ये उसने कहाँ से लिया, यहाँ से हमने ओवरराइड किया हुआ था इंट्रो में। इंट्रो में से उसने लिया माय नेम इज, और ऑब्जेक्ट क्या था, समय। देन माय रेटिंग इज 1450, उसने सेम यहाँ से लिया एब्स्ट्रैक्ट क्लास में से चीज, और सेम चीज उसने ली दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए, विदित के लिए। ओके। यहाँ तक कुछ डाउट है क्लास एंड इनहेरिटेंस में? या फिर थोड़ा स्लो जाओ ऐसा कुछ? आप चैट में लिख सकते हैं। हेलो। ओके। तो अगर सबको समझ आ गया तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके। सो अब अब हमने देखा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास से हमने इनहेरिट किया। अब हमें क्या करना है कि मुझे ये वाईटी क्लास से मेरे को एक नया क्लास इनहेरिट करना है। तो सिंपल, मुझे ये क्लास, अगर हम सेम क्लास को इनहेरिट करने जाए, कि लाइक चलो कि हमने वो क्लास लिया, सेम क्लास अगर मैं इनहेरिट करना चाहूँ, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। ओके। मैंने ये नया क्लास लिया है स्टैंड अप करके, और क्या किया स्टैंड अप में मैंने कि ये वाईटी नाम का एक्सटेंड कर दिया क्लास। ओके। अगर हम इसको रन करके देखते हैं तो क्या एरर आया कि सॉरी, क्या एरर आता है कि दिस टाइप इज फाइनल एंड यू कैनॉट इनहेरिट फ्रॉम। मतलब कि कोटलिन लैंग्वेज में कोई भी हो तो वो कोई भी अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर करें या फिर क्लास डिक्लेयर करें, वो हमेशा के लिए क्या बोलते हैं, बाय डिफॉल्ट वो फाइनल ही इनिशियलाइज होता है। और इसलिए वो उसको हम फाइनल हो तो उसको हम आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते। पर अगर मुझे ये क्लास को एक्सटेंड करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सिंपल यहाँ पे सिर्फ ओपन लिख दो बस, और कुछ हमें चेंजेस नहीं करने। यहाँ पे ओपन लिख देंगे तो क्या ये यहाँ पे डायरेक्ट एक्सटेंड हो जाएगा। सी, यहाँ पे ये ओपन किया तो वर्क करने लगा। अब क्या, यहाँ पे मैंने एक क्लास लिया, यहाँ पे मैंने एक क्लास लिया है, फंक्शन लिया हुआ है ड्यूरेशन करके। पर अगर हम आउटपुट में देखें तो वो चीज़ यहाँ पे कॉल नहीं हो रही। तो क्या करना पड़ेगा कि जैसे हमने यहाँ पे ये क्लास को भी कॉल करने के लिए वाईटी लिया था, तो वैसे ही मुझे ये दोनों क्लास को एक्सटेंड इसमें करना है स्टैंड अप क्लास में। तो उसके लिए हम यहाँ पे वाईटी की जगह लिख देंगे, सॉरी, स्टैंड अप। अब क्या, स्टैंड अप में यहाँ पे मैंने तीन वेरिएबल लिए हुए हैं कि नेम, आरटी एंड टाइम। सो हमें टाइम चेंज करना पड़ेगा यहाँ टाइम का, इसलिए यहाँ पे मैंने ओल्ड। ओके। तो वेरिएबल को यहाँ पे एक वैल्यू दे दी। अब क्या, मैंने यहाँ पे इंट्रो, इंट्रो कहाँ से वो कॉल करेगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में से। फिर लिया ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन ये वाईटी क्लास में से वो कॉल करेगा। अब हमें चाहिए कि स्टैंड अप में से ड्यूरेशन भी उसको कॉल करना है। तो क्या, सेम समय डॉट ड्यूरेशन। ओके। और सेम चीज इसमें चेंज कर देंगे, स्टैंड अप न्यू एंड विदित डॉट ड्यूरेशन। ओके। अब रन करके देखते हैं। ओके। व्हाट इज एरर? ओके सॉरी, यहाँ पे एक क्लास क्लोज नहीं किया था हमने।
ओके, सॉरी गाइस। सो यहाँ पे आ गया कि माय नेम इज समय, माय नेम इज 1450, ये दोनों उसने लिया एब्स्ट्रैक्ट क्लास में से। ये आई एम अ कॉमेडियन, वो उसने लिया वाईटी क्लास में से। और स्टैंड अप में से आई एम टाइम टू स्टैंड अप, वो उसने लिया स्टैंड अप क्लास में से। सो इस तरह से हम क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली क्लास इन इनहेरिटेंस का ये बेसिकली कंसेप्ट है। इसमें किसी को कोई डाउट अभी तक? कोई डाउट हो तो चैट में वो पेस्ट कर सकता है। हेलो, गाइस एटलीस्ट थोड़ा इंटरेक्टिव रखते हैं, यस और नो आप लिख दो। ओके, नो डाउट। ओके, सो लेट्स हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। कैन यू टेल यूज ऑफ ओपन? ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया था कि मैंने पहले बताया कि दो तरह से हम क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं, वन इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और दूसरा हमने लिया था कि एक नॉर्मल क्लास में से उसको हमें एक्सटेंड करना है। तो अब अगर हम नॉर्मल क्लास से एक्सटेंड करना हो तो उसके लिए हमें ओपन कीवर्ड सिर्फ यूज करना पड़ता है कि जो हमारा जो नॉर्मल क्लास है उसके आगे सिर्फ ओपन कीवर्ड लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना। तो फिर वो क्लास को हम यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। Basically, this is concept of inheritance. ओके, सो हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। सो हमारा क्लास हो गया, हमें अब चाहिए लिस्ट एंड म्यूटेबल लिस्ट। ओके, सो लिस्ट हमने दूसरी लैंग्वेज में अगर आपने सी किया हो या फिर पाइथन किया हो, जावा किया हो, कोई भी लैंग्वेज किया हो, तो वहां पे एक होता है एरे का कंसेप्ट। एरे को हम अगर कोटलिन लैंग्वेज में बोलने चाहिए या फिर पाइथन में बोले तो उसको हम बोलते हैं लिस्ट। अब हमें लिस्ट को इनिशियलाइज कैसे करते हैं वो देखते हैं। ओके, ये सो यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें मैंने लिया नंबर्स नाम का एक वेरिएबल लिया है। अब मुझे चाहिए क्या? 1 2 3 4 5 6, इसकी मुझे लिस्ट चाहिए। तो अगर हमें लिस्ट इनिशियल करनी हो तो लिस्ट ऑफ करके हम कीवर्ड यूज करते हैं लिस्ट ऑफ, और ब्रैकेट में जिसकी हमें लिस्ट बनानी है उतनी लिस्ट। और सेम जैसे हम दूसरे वेरिएबल को प्रिंट करते हैं उसी तरह से हम यहाँ पे वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं। सी, एरे में भी आता था कि स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, सेम चीज हमें यहाँ पे पर हम जहाँ पे जब हम इनिशियलाइज करते हैं लिस्ट को तो हमें सिर्फ लिस्ट ऑफ कीवर्ड लिखना पड़ता है बस, हम डायरेक्टली ऐसे इनिशियलाइज नहीं कर सकते। ओके, सो जैसे कि हम देखते हैं कि लिस्ट में हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कि अगर देखे जाए तो उसमें कुछ एलिमेंट ऐड कर, इंडेक्स देखना है किसी एलिमेंट का, या फिर फर्स्ट एलिमेंट करना है कॉल, फोर्थ एलिमेंट कॉल करना है, वैसा। तो हम उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस होते हैं। ओके, सो हम अब देखते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशन हम लिस्ट पे कर सकते हैं। सो अब अगर हमें लिस्ट की साइज देखनी हो तो क्या करना है? सिर्फ नंबर्स डॉट साइज। तो क्या इसकी डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड ऑपरेशंस, मतलब मेथड्स है उसकी कि लिस्ट से हम जिससे थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हैं प्रोग्राम में। तो यहाँ पे नंबर डॉट साइज दिखेंगे तो इसकी साइज दिखेगी, राइट? ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ साइज मतलब साइज 6 है इसकी, 1 2 3 4 5 6 वैसे। फिर हमें कोई एलिमेंट एक्सेस करना हो कि मुझे चाहिए कि ये 0 नंबर का एलिमेंट या फिर फर्स्ट सेकंड वैसे, तो क्या कि सिर्फ नंबर और स्क्वायर ब्रैकेट में हमें जो इंडेक्स का हमें जो एलिमेंट चाहिए वो सिर्फ एलिमेंट वहां पे लिख देना, इंडेक्स नंबर उसका, फर्स्ट सेकंड। अब क्या चाहिए? हमें लास्ट इंडेक्स चाहिए। तो जैसे कि हमें पता है कि एरे में स्टार्टिंग हमेशा नंबरिंग होती है 0 से। सो ये 0 1 2 3 4 5 इतने एलिमेंट होते हैं। अब हमें लास्ट इंडेक्स कौन सा है वो जानना है कि हमारा लास्ट, तो क्या करते हैं? नंबर डॉट साइज -1,
जिससे क्या कि हमारा जो लास्ट कितने टोटल लास्ट इंडेक्स नंबर कौन सा है वो हमें मिल जाएगा वैसे। और हमें सेम लास्ट एलिमेंट चाहिए, तो क्या करते हैं, नंबर डॉट साइज -1। उससे क्या कि जो लास्ट नंबर का जो एलिमेंट होगा वो हमें शो करेगा। फर्स्ट अगर हमें एलिमेंट चाहिए तो नंबर डॉट फर्स्ट, और नंबर डॉट लास्ट करके लास्ट एलिमेंट, मतलब ये दो उसकी अल्टरनेटिव मेथड्स है, ये और ये, हमें लास्ट नंबर चाहिए हो तो। ओके, और फर्स्ट के लिए ये और ये दोनों है फर्स्ट के लिए। अब उसमें एक और इसमें एक है कंटेंट्स मेथड। अब कंटेंट्स मेथड क्या होता है कि अगर मुझे देखना है कि ये लिस्ट है उसके अंदर 4 है कि नहीं, तो उसके लिए हम लिखते हैं नंबर डॉट कंटेंट्स, और कंटेंट्स में अगर ब्रैकेट में हम लिखेंगे 4 सिर्फ, तो हमें वो आंसर बुलियन में देगा, मतलब बुलियन में आई मीन ट्रू एंड फॉल्स में देगा उसका आंसर हमें। सेम चीज हमने यहाँ पे 7 लिखा, अगर हम देखें तो 4 है यहाँ पे, तो इसमें लिस्ट में देखें तो 4 है, इसलिए इसका आंसर हमें मिलेगा ट्रू। और अगर 7 का चेक करना है तो यहाँ पे 7 नहीं है पूरे लिस्ट में, तो उसका आंसर हमें मिलेगा फॉल्स। ओके, अब हम जैसे हम जब अब सीखते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में आई थिंक हम सीखेंगे सी लैंग्वेज, तो फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में, तो वहाँ पे हमने क्या आता था कि एक एरे दिया है, फिर उसको रिवर्स करो, फिर उसको सॉर्ट करो, उसके लिए हम पूरा लूप करके प्रोग्राम लिखते थे। उससे अच्छे यहाँ पे कोटलिन लैंग्वेज में सिंपल दिया हुआ है कि लिस्ट पे सिर्फ हमें डॉट करके रिवर्स लिख देंगे अगर हमें लिस्ट रिवर्स करनी हो। तो उससे क्या कि पूरी, अगर ये 1 2 3 4 5 6 है तो उसकी जगह 6 5 4 3 आ जाएगा ऐसे। और अगर हमें सॉर्ट करना है कि फर्स्ट, कि अगर हमने यहाँ पे ऐसा दिया हो कि 1 10 देन 8, सॉरी, ऐसा हमें लिस्ट दिया हो, अगर उसको हम सॉर्ट करते हैं तो क्या, सॉरी, ओके, ओके, सॉर्ट करना है मतलब उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें उसको सॉर्ट करना है, तो सिर्फ ऐसे यहाँ पे सिर्फ सॉर्टेड लिख देंगे, तो क्या वो पूरी लिस्ट ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग हो जाएगी उसकी। अब मुझे लिस्ट में एक एलिमेंट ऐड करना है। ओके, तो मुझे चाहिए कि मैं नंबर्स में ऐड करना है, तो एक मेथड नंबर्स डॉट ऐड, और मुझे चाहिए कि मुझे इसमें 7 ऐड करना है, तो 7, एंड सेम अगर उसको प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट एलन लिस्ट नंबर्स। ओके, सो इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे एक एरर दिया उसने कि अनरिजल्ट रेफरेंस ऐड, को मतलब उसका कहना क्या है कि इस लिस्ट में हम कुछ ऐड नहीं कर सकते। तो अगर हम देखें, अगर आप बोलोगे कि यहाँ पे आपने वेल वेरिएबल लिया है इसलिए उसकी जगह हम वेर कर दें, तो शायद से ऐड कर पाएंगे, फिर नहीं। लिस्ट क्या होता है कि मैंने जैसे लास्ट टॉपिक में बताया, कोटलिन में हर एक, हमें हर एक जो भी हम इनिशियलाइज करते हैं वो फाइनल होता है। तो यहाँ पे लिस्ट, ये लिस्ट को भी इनिशियलाइज किया हमने, तो फाइनल है वहां पे, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब वो अनम्यूटेबल है। सो हमें अगर वो चेंज करना है तो क्या करेंगे, उसको हम सिर्फ उसकी जगह हम लिख देंगे म्यूटेबल लिस्ट। ओके, न्यू प्रोग्राम ही ले लेते हैं पूरा। ओके, यहाँ पे मैंने लिया, वहां पे लिस्ट ऑफ था, उसकी जगह मैंने लिया म्यूटेबल लिस्ट ऑफ। अब जैसे हम म्यूटेबल लिस्ट ऑफ लिखेंगे, यहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ता है कि वो लिस्ट कौन से टाइप की है, लाइक इंटीजर है, स्ट्रिंग है, एनम है, कौन से टाइप की है एग्जैक्टली वो लिस्ट। सो उसके लिए हम यूज करेंगे ग्रेटर देन लेस देन, सो लेस देन ग्रेटर देन। सो उसके बीच में मैंने लिख दिया कि डेटा टाइप मेरा इंटीजर डेटा टाइप है, और मैंने लिस्ट लिख दी 1 2 3। सो यहाँ पे आया ओल्ड लिस्ट इज इक्वल्स टू 1 2 3। अब मुझे उसमें कुछ ऐड करना है। ओके, सो जैसे हमने लास्ट में देखा था कि 7 ऐड करता है, मुझे यहाँ पे एक न्यू मेंबर ऐड करना है कि मुझे 6 ऐड करना है, सेम नंबर्स डॉट ऐड 6। और अगर हम इसको रन कराए के देखें तो क्या, देखो यहाँ पे एक ऐड हो गया 6। सो बेसिकली हमें कोई भी लिस्ट में अगर ऐड करना हो, कुछ भी ऐड करना हो या फिर रिमूव करना हो, उसके लिए वो लिस्ट म्यूटेबल होनी चाहिए। अगर म्यूटेबल लिस्ट नहीं है तो उसके साथ हम कुछ चेंजेस नहीं कर पाएंगे। सो
अगर जैसे हमने लिस्ट में देखा था कि उसके कुछ ऑपरेशंस थे, सेम ऑपरेशंस यहाँ पे म्यूटेबल लिस्ट के भी है। तो वो ऑपरेशंस देखते हैं हम। ओके। सो यहाँ जैसे मैंने बताया कि मेंबर ऐड करने के लिए डॉट ऐड, अगर हमें मल्टीपल मेंबर्स ऐड करने हैं तो डॉट ऐड की जगह हम यूज करेंगे डॉट ऐड ऑल। अब ऐड ऑल क्या करते हैं कि जितने भी हमने यहाँ पे लिस्ट जो भी पास की हो, वहां पे जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे एक साथ वो ऐड कर देगा। अगर हम लिस्ट यहाँ पे रन करें तो यहाँ पे दिखेगा कि ये लिस्ट वन है तो एक एलिमेंट ऐड किया हुआ है हमने, लिस्ट टू के लिए हमने दो एलिमेंट ऐड किए हुए 7 और 8। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लिस्ट टू में 1 2 3 और 6 7 8 तीन एलिमेंट, एक इसका एलिमेंट और दो इसके एलिमेंट। ओके। तो जैसे हमने ऐड कर सकते हैं वैसे हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो रिमूव स्पेसिफिक मेंबर फ्रॉम लिस्ट, जैसे हमने डॉट ऐड यूज किया था उसकी जगह हमें सिर्फ डॉट रिमूव यूज करना है। सो 3। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो पूरे लिस्ट में से 3 रिमूव हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे हमने डॉट रिमूव करके यूज किया था। अब मुझे ऐसा चाहिए कि मुझे मेरी ये लिस्ट है कि ये पूरी लिस्ट है, तो उसमें से मेरे को ये 0 1 2 3 और फोर्थ नंबर ये जो 7 है वो मेरे को मुझे वो रिमूव करना है। तो क्या उसके लिए हम यहाँ पे इंडेक्स डाल देंगे नंबर्स डॉट रिमूव एट 3। तो क्या होगा, देखो यहाँ से 7 रिमूव हो गया ये लिस्ट में से, और ये लिस्ट प्रिंट कर दिया हमने। अब मुझे क्या कि पूरी लिस्ट में मुझे कुछ नहीं चाहिए, पूरी लिस्ट क्लियर कर देनी है। तो नंबर डॉट क्लियर ये मेथड हम कॉल करेंगे, तो क्या पूरी लिस्ट क्लियर हो जाएगी। ओके। सो लिस्ट एंड म्यूटेबल लिस्ट में इतना, इसमें किसी को डाउट है अब अभी तक के लिए? अगर डाउट हो तो चैट में प्लीज टेस्ट कर दो, अगर नहीं है तो सिर्फ नो लिख दो ताकि मैं समझ जाऊँ कि हमें आगे जा सकते हैं फिर। ओके। अखिल नो बोलो। ओके ओके ओके। सो चलो आगे चलते हैं अभी कि हमारा नेक्स्ट है लीनियर लेआउट एंड सॉरी लीनियर लेआउट एंड फॉर्म ऐप। अब हम देखते हैं लीनियर लेआउट क्या होता है। कि जैसे कि लीनियर लेआउट बेसिकली वन व्यू ग्रुप है, कि व्यू ग्रुप हमने देखा था लास्ट टाइम, कंस्ट्रेंट लेआउट देखा था हमने। कंस्ट्रेंट लेआउट की तरह सेम लीनियर लेआउट है वन टाइप ऑफ व्यू ग्रुप, जो क्या करता है उसके सारे चिल्ड्रन को सिंगल डायरेक्शन में अलाइन करता है। तो अगर हम उसकी बेसिकली थियोरेटिकल डेफिनेशन देखते हैं कि लीनियर लेआउट इज अ व्यू ग्रुप दैट अलाइन ऑल चिल्ड्रन इन अ सिंगल डायरेक्शन, फिर वो चाहे वर्टिकली हो सकता है या फिर हॉरिजॉन्टली, देन यू कैन स्पेसिफाई लेआउट डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि अगर हम देखें स्लाइड में कि वहां पे मैंने लिखा है ओरिएंटेशन वर्टिकल एंड ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल, और अगर हम देखें तो यहाँ पे तीन ब्लॉक्स बने हुए हैं जो वर्टिकल डायरेक्शन में स्टैक्ड है, फिर हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल लैंग्वेज में हॉरिजॉन्टल साइड में स्टैक है वैसा। सो ऑल चिल्ड्रन ऑफ linear layout are stacked one after another, so vertical list will only have one child per row no matter how wide they are। मतलब वो पूरी अगर हम उसको इनिशियलाइज करेंगे कोई भी व्यू को, वो पूरा का पूरा उसका जो भी विड्थ हो, वर्टिकल में हो तो विड्थ या फिर हॉरिजॉन्टल में हो तो पूरी हाइट उसकी कवर कर लेगा। ओके। और हम अगर एक रो में सिर्फ हम एक ही व्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं स्टार्टिंग में, हम दूसरा व्यू इनिशियलाइज नहीं कर सकते। अगर वो इनिशियलाइज कैसे करना है वो हम प्रैक्टिकल ऐप का देखेंगे तब मैं आपको वो वापस से समझाऊंगा एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है। ओके। 1 मिनट। ओके। सॉरी। सो अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है
कि हम इसके लिए ऐप बनाएंगे, हम बनाएंगे फॉर्म ऐप, जो हमने यहाँ पे देखा था। यहाँ पे ये हम अब ऐप डिजाइन करेंगे, उसके लिए हमें चाहिए एंड्रॉइड स्टूडियो में शिफ्ट होंगे हम। वेट, लेट मी शेयर माय एंड्रॉइड स्टूडियो। ओके, सो हमने देखा था कि फाइल करके न्यू करके हम न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं, वैसे ही मैंने यहाँ पे पूरा न्यू प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। सी, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड वाला है। ओके, तो हमें क्या चाहिए कि हेलो वर्ल्ड नहीं चाहिए, तो हेलो वर्ल्ड को हम डिलीट कर देंगे। और यहाँ पे जैसे कि हम पहले देखते हैं कि कोड में कि यहाँ पे ऑलरेडी कंस्ट्रेंट लेआउट होता है, पर हमें कंस्ट्रेंट लेआउट नहीं चाहिए, उसकी जगह हमें चाहिए कि हमें लीनियर लेआउट चाहिए। तो यहाँ पैलेट में जाएंगे, वहां से लेआउट, और हमें कौन सा फॉर्म ऐप बना दिया, तो उसमें पहले नेम होगा, फिर एनरोलमेंट नंबर होगा, फिर सबमिट बटन है, तो वो क्या वर्टिकली स्टैक्ड है, तो उसके लिए यहाँ पे होगा लेआउट वर्टिकल। सो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। सो देखो यहाँ पे वर्टिकल लेआउट आ गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें एट्रीब्यूट्स में, उसमें एरर दिखा रहा है क्योंकि वो कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर इनिशियलाइज हुआ है, पर हमें क्या करना है, कंस्ट्रेंट लेआउट नहीं चाहिए। तो ये बेसिकली ये एक लाइन है XMLNS करके, जो हम एंड्रॉयड के जो हम लेआउट के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको यूज करने के लिए ये जरूरी है वैसा। सो हम उसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे, और बाकी का जो कंस्ट्रेंट का पुराना कोड था वो डिलीट कर देंगे। ओके, और यहाँ पे एक एरर है। ओके, अल्टर एंटर। ओके, सो यहाँ पे ये पूरा, अगर हम यहाँ पे देखें तो कंपोनेंट ट्री में पूरा जो पेरेंट है वो कौन सा हो गया, लीनियर लेआउट। अब हमें क्या क्या चीजें ऐड करनी है कि अगर अ, हम उसमें, अगर हम स्लाइड में देखा था कि हमने क्या करना है, फर्स्ट नेम था, वेट, लेट मी शेयर मल्टीपल। सी, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एनरोलमेंट नंबर, सबमिट बटन, यहाँ पे एक और व्यू। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए कि दो, अ, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडिट टेक्स्ट करके एक होता है। सो यहाँ पे अगर हम टेक्स्ट पैलेट में जाए तो वहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू है, प्लेन टेक्स्ट है, पासवर्ड है। तो जहाँ पे ये अंडरलाइन की हुई है, अगर हम प्लेन टेक्स्ट देखें तो उसके आगे ए बी लिखा हुआ है और उसके नीचे अंडरलाइन की हुई है। अंडरलाइन का मतलब क्या है कि हम उसको, वो व्यू एडिटेबल है, कि उसकी वैल्यू हम यूआई फ्रंट एंड साइड से भी चेंज कर सकते हैं। तो सेम यहाँ से हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। सो यहाँ पे बहुत व्यू है, हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करने थे, उससे अच्छा हम एक कोड ले लेते हैं पूरा, वही कोड डायरेक्टली यूज करते हैं। ओके, लेट मी शेयर, सॉरी, कोड में। ओके, सो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये दो व्यू आ गए यहाँ पे कि फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। पर यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दोनों हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के साइड में आए। उसके लिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे अगर हम देखें कोड में कि लीनियर लेआउट, मैंने दूसरा एक और लीनियर लेआउट के अंदर एक और लीनियर लेआउट लिया, और उसका मैंने ओरिएंटेशन दे दिया हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हमें फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दोनों एक दूसरे के साइड में चाहिए था। ओके, और यहाँ पे मैंने पैडिंग दे के रखी है 10 dp। और यहाँ पे अगर हम देखें तो वो पूरा यहाँ पे चिपका हुआ है, तो इसको भी हम पैडिंग दे देते हैं यहाँ पे, पैडिंग 16 dp। ओके, तो ओके, ये सेंटर में आ गया और अच्छा लग रहा है। यहाँ पे विड्थ मैंने मैच पेरेंट और मैच पेरेंट। ओके, अब क्या कि हम जैसे यहाँ पे हर एक व्यू के एडिट टेक्स्ट किया है, तो उसके यहाँ पे आईडी है कि आईडी डॉट फर्स्ट नेम और आईडी डॉट लास्ट नेम। सेम इस लीनियर लेआउट को भी हम एक आईडी दे देते हैं कि हमें यहाँ से इनपुट लेना है, तो इनपुट आईडी दे देते हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये थोड़ा लाइट ग्रे कलर में दिख रहा है। तो यहाँ पे एक फंक्शन आता है कि हिंट। हिंट का मतलब क्या कि जब हम उस पर टैप करेंगे तो वो यहाँ पे हम एडिट कर सकते हैं और वो चीज चली जाएगी, मतलब वन टाइप ऑफ हम हिंट देते हैं वैसे।
कि हिंट में लिखा है मैंने फर्स्ट नेम और यहाँ पे हिंट में लिखा है मैंने लास्ट नेम। अब मुझे क्या, एनरोलमेंट नंबर भी चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर भी कर देते हैं। अब मुझे एनरोलमेंट नंबर क्या चाहिए कि इसके ये जो मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखा हुआ है उसके नीचे चाहिए हमें। तो कि ये लीनियर लेआउट तो हम यूज करेंगे, तो इसका हॉरिजॉन्टल है तो क्या होगा कि वो उसके बाजू में ही आ जाएगा, पर हमें चाहिए उसके नीचे, तो ये जो मेन लीनियर लेआउट है उसमें हम ऐड करेंगे ये लीनियर लेआउट का हम खत्म करने के बाद। ओके, सो यहाँ पे एक एनरोलमेंट नंबर का हो गया सेम, वो एडिट टेक्स्ट ही है। अगर हम यहाँ पे देखें सी, यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर के आगे ए बी लिखा हुआ है और उसके नीचे अंडरलाइन है। अगर हम वहां पे पॉइंट अपना कर्सर लेके जाए तो वहां पे दिखता है कि एडिट नेम। ओके, अब हमें क्या कि बटन भी चाहिए कि सबमिट करेंगे तो दिखना भी चाहिए, फॉर्म ऐप में बट सबमिट बटन होता है वैसे। सो यहाँ पे मैंने डाल दिया सबमिट बटन। अब सबमिट बटन, ओके, और यहाँ पे मैंने एक नया लिया हुआ है ग्रेविटी। अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने लिया हुआ है ग्रेविटी। अब ग्रेविटी क्या करता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ इसमें ग्रेविटी होती है कि हमें वो जो प्रॉपर व्यू है वो कौन से जगह पर चाहिए, उसके लिए हम इस करते हैं ग्रेविटी वर्ड। अगर हम यहाँ सेंटर की जगह लिख देंगे लेफ्ट तो वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। फिर अगर उसकी जगह हम राइट लिख देंगे तो पूरा व्यू राइट में शिफ्ट हो जाएगा। पर हमें वो चाहिए सेंटर में, इसलिए मैंने लिखा सेंटर। ओके, इतना हो गया। ओके, सो इतने हम रन कर देते हैं। तो मैं वो प्रेजेंट करता हूँ। ओके, सो ये मेरा फोन है, इतने ऐप को हम रन करेंगे। ओके, इंस्टॉल हो रहा है ऐप। सो यहाँ पे देखो हमने लिया फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एनरोलमेंट नंबर। अब मैंने एनरोलमेंट नंबर में अगर हम कोड में देखें तो मैंने एक चीज यहाँ पे की हुई है कि इनपुट टाइप दिया हुआ है। अब इनपुट टाइप क्या होता है कि मैंने जैसे यहाँ पे इनपुट टाइप दिया है टेक्स्ट पर्सन नेम। सो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा मेरा कीवर्ड यूज होगा जिसमें अल्फाबेट्स है, सेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम। पर अगर मैं जैसे एनरोलमेंट पे क्लिक करूंगा मेरा नंबरिंग आ जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर सिर्फ नंबर चाहिए और दूसरा कुछ डेटा नहीं चाहिए लाइक अल्फाबेट्स और सिंबल्स टाइप, इसलिए मैंने यहाँ पर इनपुट टाइप दे दिया नंबर। ओके, अब मुझे क्या चाहिए कि जहाँ पे हम यहाँ पे हमने जो भी इंफॉर्मेशन डाली, लाइक यहाँ पे मैंने नाम डाला और जस्ट फिर यहाँ पे मैंने डाला और यहाँ पे मेरा लाइक एनरोलमेंट नंबर डाला और मैंने सबमिट किया, तो मुझे यहाँ पे पूरा दिखना चाहिए कि मैंने मेरा नेम ये है और मेरा एनरोलमेंट नंबर 1801222 ऐसा है। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर हम एक और लीनियर लेआउट लेते हैं उसके अंदर। ओके, सो एक और लीनियर लेआउट, वेट अ मिनट, डिफाइन करते हैं। ओके, इसके अंदर दो टेक्स्ट भी हो गए कि एक तो मेरा चाहिए नेम मुझे चाहिए और दूसरा चाहिए एनरोलमेंट नंबर। सो ओके, सो ये आ गया एक नेम एंड एनरोलमेंट नंबर। यहाँ पे मैंने उसकी आईडी दी है आउटपुट और उसकी साइज दी है मैंने मैच पेरेंट एंड हाइट दी है उसकी रैप कंटेंट। ओके, और यहाँ पे मैंने दो टेक्स्ट व्यू लिए, एक तो नेम टेक्स्ट व्यू और एनरोलमेंट टेक्स्ट व्यू। अब अगर हम डिजाइन में देखें तो यहाँ पे नेम एंड टेक्स्ट व्यू उसके आगे अंडरलाइन नहीं है, उसका मतलब क्या कि उसको हम बाद में एडिट नहीं कर सकते कि जो यूजर है उसके साइड से इनपुट वहां पे नहीं जा सकता। ओके, सो यहाँ पे मुझे ऐसा चाहिए कि ये सबमिट बटन क्लिक होने के बाद ही ये मुझे दिखना चाहिए। उसके लिए एक आता है विजिबिलिटी करके, कि अगर हम यहाँ पे वी आई सिर्फ लिखे तो यहाँ पे ये आ जाएगा विजिबिलिटी। और विजिबिलिटी क्या करता है कि उस व्यू को क्या करना है कि इनविजिबल करना, तो वहां से दिखना बंद हो जाएगा। वैसे ही गॉन करना हो तो मतलब पूरा वो निकल ही जाएगा व्यू पूरा। और नॉर्मल अभी अभी हम लगते हैं विजिबल क्योंकि हमें वो देखना है। अब मुझे ऐसा करना है कि अगर हम ये यहाँ पे फर्स्ट नेम डालें लास्ट नेम डालें एनरोलमेंट नंबर डाके सबमिट करें
तो तभी ये मेरे को व्यू दिखना चाहिए। ओके, उसके लिए हमें वो चीज़ करने के लिए हमें चाहिए कि कोटलिन फाइल में हमें चेंजेस करने पड़ेंगे उसके लिए। सो अगर जैसे कि हमने यहाँ पे लिया हुआ है कौन कौन से वेरिएबल्स लिए हुए हैं, कि यहाँ पे मैंने आईडी दिया हुआ है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और हमने लिया हुआ है एनरोलमेंट नंबर और बटन। और हमने लास्ट टाइम देखा था कि जब हमने डाइस यूजर ऐप बनाई थी, तो वहाँ पे हमने पूरा यूज किया था सारे वेरिएबल्स जो भी इनिशियलाइज किए थे। वैसे सेम यहाँ पे हम देंगे वेल, और मुझे चाहिए फर्स्ट नेम, इसलिए मैंने लिया एफ एन वेरिएबल। अब मुझे क्या करना है कि एफ एन की वैल्यू मुझे चाहिए यहाँ से फर्स्ट नेम में से। सो क्या, फाइंड व्यू बाय आईडी, जो हमने लास्ट टाइम यूज किया था, और कैसा टाइप का है वो व्यू है एडिट टेक्स्ट। तो यहाँ पे मुझे उसका एडिट टेक्स्ट डालना पड़ेगा। सॉरी। अब मुझे वो आईडी कहाँ से फैच करेगा, उसके लिए मुझे उसकी आईडी चाहिए, आर डॉट आई डी डॉट फर्स्ट नेम। ओके, और सेम मुझे चाहिए लास्ट नेम। तो एक और वेरिएबल क्लियर करेंगे लास्ट नेम का, सेम फाइंड व्यू बाय आईडी, और एडिट टेक्स्ट है वो भी, एंड देन ओके आर डॉट आई डी डॉट लास्ट नेम। सेम मुझे चाहिए एनरोलमेंट नंबर, सो यहाँ पे मैंने डाल दिया ई एन, और सेम फाइंड व्यू बाय आईडी, और वो भी एडिट टेक्स्ट है, एन आई डॉट एन डॉट एनरोलमेंट नंबर। ओके, अब मुझे क्या चाहिए कि बटन, यहाँ पे बटन पे क्लिक करने पे ये होना चाहिए। तो जैसे हमने लास्ट टाइम एक सीखा था कंसेप्ट सेट ऑन क्लिक लिसनर का। सो ओके, तो सबमिट हम वेरिएबल बना रहे सबमिट का, जिसके अंदर हम लेंगे सो फाइंड व्यू बाय आईडी, और हमारा क्या है बटन, और बटन की हम आईडी दे देंगे वहां पे। अब ओके ओके, सो यहाँ पे सबमिट डॉट सेट ऑन, वेट अ मिनट। ओके, हमें सबमिट कौन से टाइप का है, तो बटन। ओके, हाँ, यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे हमें टाइप देने पड़ेंगे कि यहाँ पे मुझे वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा डॉट टेक्स्ट। डॉट टेक्स्ट में अगर हम लिखे तो यहाँ पे लिखा है कि गेट टेक्स्ट एंड सेट टेक्स्ट, मतलब कि जो भी टेक्स्ट आएगा वो इस वेरिएबल को सेट हो जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पे डॉट टेक्स्ट यूज करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे मैंने बटन बनाया हुआ है, तो सबमिट। ओके, व्हाट इज इश्यू। ओके, सॉरी। ओके, सॉरी, वो थोड़ा इश्यू हो गया था। हम्म, जो भी हम कंटेंट लिखेंगे बेसिकली ये सेट कंटेंट व्यू के बाद में लिखना होता है, और मैंने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया था। ओके, तो हमें क्या करना है कि अगर वो बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ टास्क परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हम करेंगे सेट ऑन क्लिक लिसनर। अब सेट ऑन क्लिक लिसनर के लिए हमें उसके अंदर कुछ तो इनिशियलाइज करना पड़ेगा कि हमें ये टास्क परफॉर्म करना है। इसके लिए हम यूज करेंगे करली ब्रैकेट्स। अब करली ब्रैकेट्स के अंदर हमें चाहिए कि क्या चाहिए कि यहाँ पे जो हमने नेम लिया हुआ है उसकी वैल्यू सेट होनी चाहिए। सो अगर हम यहाँ पे देखिए इस टेक्स्ट व्यू की आईडी क्या है, नेम, तो सिंपल यहाँ पे डायरेक्ट हम नेम डॉट कुछ भी हमें जो भी वैल्यू सेट करनी है वो कर सकते हैं। तो सेट टेक्स्ट, ओके, यहाँ पे क्या है, ओके, अल्टरनेट, सो वैल्यू डॉट सेट टेक्स्ट। हमें सेट टेक्स्ट की वैल्यू वो कहाँ से गेट करनी चाहिए कि ये एफ एन और एल एन मिक्स होना चाहिए। मुझे वैसा चाहिए कि ओजस और वाणी जो हमने अलग अलग लिया हुआ है वो मुझे सेम चाहिए। सो डॉलर, और यहाँ एफ एन कॉल कर देंगे वेरिएबल, और यहाँ पे हम एक और वेरिएबल कॉल कर देंगे लास्ट नेम। ओके, नेम, और से मुझे चाहिए एनरोलमेंट भी चाहिए। सो
यहाँ पे enroll डॉट सेट टेक्स्ट, और मुझे चाहिए एनरोलमेंट, और उसकी वैल्यूज मुझे चाहिए एनरोल में से जो हमने यहाँ से जो वैल्यू वो डॉट टेक्स्ट के अंदर जो वैल्यू सेट होगी इस वेरिएबल के अंदर, वो वैल्यू यहाँ पे सिर्फ हम कॉल करेंगे। और अब मैंने यहाँ पे दिखाया था कि यहाँ पे मैंने एक विजिबिलिटी डाला था कि मुझे ये बटन प्रेस करने पर ही ये दिखना चाहिए। सो पहले इनिशियली हम इसको इनविजिबल कर देते हैं। ओके, अब वो विजिबिलिटी कैसे चेंज करेंगे कि यहाँ पे हमने एक लीनियर लेआउट का हमने एक नाम दिया था, यहाँ पे आईडी दी थी कि क्या था, आईडी आउटपुट। सो वो आउटपुट डॉट विजिबिलिटी। अब विजिबिलिटी हम उसकी सेट कर देंगे कि व्यू डॉट विजिबल। और अब हम इसको रन करके देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या होता है चेंजेस। ओके, इंस्टॉल। ओके, अगर हम यहाँ पे हम डालते हैं कि जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा अभी कि जो हमने नेम और एनरोलमेंट लिया था वो। अगर मैं डालूंगा कि यहाँ ओजस देन पहाड़ी, और यहाँ पे मैंने डाल दिया। ओके, और हम जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमें दिख जाएगा नेम और एनरोलमेंट नंबर। सो यहाँ पे इसने क्या किया, सेट एंड क्लिक लिसनर के सेट एंड क्लिक लिसनर हमने लिया हुआ था, तो नेम डॉट सेट टेक्स्ट, मतलब जो भी यहाँ पे हमने लिया था वो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया नेम के अंदर टेक्स्ट, और एनरोलमेंट के अंदर मैंने यहाँ से जो एनरोलमेंट आएगा वो मैंने सेट कर दिया, और विजिबिलिटी मैंने चेंज कर दी ड्यू टू विजिबल, इसकी वजह से ये दिखने लगा। ओके, सो बेसिकली ये हमारी आज की ऐप थी। इस ऐप में कुछ डाउट है किसी को, कुछ कॉन्सेप्ट समझ ना आया हो कि कैसे किया मैंने, तो चैट में लिख सकते हैं। सबको समझ में आ गई ये चीज कैसे किया मैंने? नो डाउट। ओके, ओके, ओके। सही, डाउट या फिर समझ में आ गया, वाई यू यूज डॉलर साइन। ओके, हमने देखा था फर्स्ट, हमारे जो फर्स्ट सेशन हुआ था उसमें देखा था कि हमें कोई भी अगर प्रिंट करना हो, जो भी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, तो हम क्या करते हैं कि डॉलर साइन यूज करते थे। तो वैसे ही हमें यहाँ पे वेरिएबल लेना है, यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट एफ एन लिखे तो वो डायरेक्ट सिर्फ एफ एन लेगा, पर हमें क्या चाहिए कि एफ एन जो वेरिएबल है वो हमें उसकी वैल्यू चाहिए, इसलिए वो हमें वैल्यू के लिए डॉलर एंड करली ब्रैकेट्स के अंदर हमें वेरिएबल लिखना पड़ता है, तो ही वो उसकी वैल्यू डायरेक्ट गेट करेगा। ओके, कल क्लियर। ओके, सो लेट्स गो अहेड। ओके, सो कि कुछ क्वेश्चन है इसके अंदर या फिर पुराने इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन हो आज के, मतलब कोई भी टॉपिक में आपको क्वेश्चन हो आज के पूरे सेशन में, तो अभी पूछ सकते हो आप। ओके, सो सो नाउ यू कैन स्टार्ट विथ योर कोर्स ऑल्सो, एंड आपको अगर यूनिट टू अब स्टार्ट कर सकते हो, उसके अंदर आप बैजेस कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड अगर आप आगे एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी ऑन डिस्कॉर्ड। अगर कोई भी कंसेप्ट भी रिपीट करना हो तो डिस्कॉर्ड पे आप पूछ सकते हो, हम वापस वहाँ पे साथ में सीख लेंगे। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। So let me again give stage to Bharvi Patel, our host. Bharvi, stage is yours. Thanks, Ojas. Thank you all for being with us today. We admire your presence. As a community, we are here to grow with each other, so our identity should be viable to all of us. Also, feel free to interact. We'll be sharing a feedback form in the chat. Do fill the form and acknowledge your presence. Please double check all the details before submitting your response. Thank you. Thank you everyone.
फीडबैक फॉर्म चैट में शेयर किया है, प्लीज सब फीडबैक फॉर्म फिल कर देना। और एक और बात गाइस, मुझे पता है कि सबकी एग्जाम आ रही है, तो वैसे कुछ टाइम लिमिट है नहीं अभी हमारे पास। सो जब भी आप कंप्लीट कर सकते हो बैचेस, प्लीज कंप्लीट कर लेना। इट विल बी बेनिफिशियल टू यू ओनली। Okay, thank you so much everyone for joining in today. Now I'll be ending the meeting.